starting the program webinar. So, very good morning. I, Urvashi Agrawal, welcome all of you in this webinar. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcoming on behalf of the Basudev Memorial Girls Degree College. Basudev Memorial Girls Degree College is organizing this webinar. Good morning, our respected Manager Director Dr. K.S. Mishra sir, our Principal Ma'am, Dr. Hemlata Bora Ma'am, and our respected resource person, Dr. Kiran Lata Dangwal Ma'am, my faculty, and all the participants of this webinar. As we know that Basudev Memorial Girls Degree College is organizing this program. Basudev Memorial Girls Degree College, Lucknow was established in 2005 with the aim to serve society, and since then this society is involved in various social and educational activities, likewise giving education to girls, financial support to poor children for their education, giving giving shelter and food to deprived persons, and also providing financial support to poor girls for their marriages. This society was founded in the loving memory of late Pandit Basudev Prasad Mishra, who worked hard and helped the poor and needy persons throughout his life. It was his dream to establish an educational institution, especially for girls, to complete the unfinished task. Basudev Memorial Girls Degree College, Lucknow, was established in the year 2005 by Dr. Karuna Shankar Mishra in the fond memory of his father, late Sri Vasudev Prasad Mishra, with the main object of providing quality education to girls. The main objective of this college is all-round development of the girls. This college is running BA, BSc, BCom and B.Ed courses, and this college is associated to University of Lucknow and runs as per the rules and regulations of the university. And this college has good infrastructure and qualified faculty. So, very warm welcome. Now, I would like to request to our respected principal, Dr. Hemlata Bora ma'am, to join or to over the screen and to say some words about college and about the webinar. Please, ma'am, join. Okay, I am audible. Yes, ma'am, you are audible. Okay. Good morning, distinguished guests and all participants. It is my pleasure to welcome you all to the college webinar. On behalf of I, Dr. Hemlata Bora, Principal Basudev Memorial Girls Degree College, I would like to extend a warm welcome to our keynote speaker, Professor Kiran Lata Dangwal ma'am. We are indeed grateful for your gracious presence, who always extend her support and help in achieving our height. I feel grateful to welcome our manager, Sir Dr. K.S. Mishra ji, who is a great guidance for the college. I would also like to participants who constantly support us and believe in us. Let me welcome our dear teachers who take constant efforts and dear students who are all set to make this event a remarkable one. This online national webinar on the very relevant topic, online teaching challenges and solution amidst COVID-19. As you know that today we are all the clutch of the coronavirus, and this virus is so threatful and this virus of so deadly that the death toll is well high. But as we all know that life should must go on. It not should stop anytime, and life means that life should be dignified life. So is that dignified life the dissemination of knowledge and getting information is also very important, and what that for purpose now we having their virtual stage and platform to meet you all and to disseminating information and knowledge. So I formally welcome all the participants and honorable guests in the national webinar. Thank you so much. Over to Rushi ma'am.
थैंक यू सो मच मैम। आवाज आ रही है इसमें, बहुत आवाज आ रही है, बहुत आवाज आ रही है इसमें, आवाज देखो कैसी आ रही है। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज वेट फॉर 1 second. Now, I would take opportunity to invite our respected Dr. Kiran Lata Dangwal ma'am. But before inviting her, I would like to introduce her formally. Actually, उनको किसी इंट्रोडक्शन की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, बट फिर भी एक इनके ऑनर में एक छोटा सा फॉर्मल उनके लिए जो एक वेलकम है, I would like to share with all the participants. Dr. Kiran Lata Dangwal ma'am is faculty in the Development of Education and Additional Dean, Academic Cell, University of Lucknow, has a specialization in educational technology, including computer education and social science pedagogy, and for she is rendering expertise in the university. Besides being continuously engaged in various educational assignments, she has written several articles on different aspects related to education for leading magazines and journals of the country to disseminate and diffuse knowledge, particularly focusing on developments in the field of technology and enlighten teachers, researchers, scholars, and students in the implementation of technological developments in education. She has authored and edited 14 books and has also produced more than a dozen unusual research papers. Some of them paved the way to their nomination for the Young Scientist Award of the ISCA. She has delivered lectures in various universities, institutes, and colleges in India, Europe, South Africa, Indonesia, Thailand, Malaysia, and Myanmar. She has been honored with the Shiksha Ratna, Shiksha Gaurav, Uttarakhand Gaurav Samman, Best NCC Officer, and DG NCC Commendation Award by various institutions, associations, and Uttar Pradesh Directorate. Besides being an effective and admired teacher, Dr. Kiran Lata Dangwal is an able administrator holding the prestigious post like the Joint Secretary of the Lucknow University Teachers Association, the Assistant Provost, the Assistant Proctor, the Deputy Coordinator, and the OSD in admissions, the Evaluation and Results Cells, and NCC Program Officer, and the NCC Officer. Dr. Dangwal has successfully organized many prestigious national international seminars, workshops, and has earned a reputation as a proficient professor of NCCC certificate. Moreover, besides receiving the honorary rank of captain, the All India Radio has broadcasted several talks of Dr. Dangwal from time to time, and she has also produced a number of features and documentaries for the AIR. In addition, she has a good suite of computers and has developed many multimedia presentations for school students and pupil teachers. Thank you. So I would like to request Dr. Dangwal ma'am, please come and address the webinar. Thank you, Dr. Urvashi. Thank you, Hemlata ma'am. Am I audible to all of you? Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. Thank you for giving me the honor to interact with the participants. And I can see that most of the participants are, I think, students. So I'll focus on students also as well as teachers. Today, Urvashi ma'am has given me a very relevant topic. And before starting, I would like to congratulate Mishra ji because he has taken the initiative to conduct these types of webinar, which is a need of hour. और अगर हम इसको नहीं अपनाएंगे तो शायद भविष्य में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आपके पूरे मैनेजमेंट को, आपके प्रिंसिपल को, आपके टीचर्स को बहुत बहुत साधुवाद ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए।
Now, I would like to start with online teaching, the topic which Urvashi ma'am has given me, that challenges and solutions, what we can do and what we should do in future also. अभी जो भी हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ मोमेंट. Urvashi ma'am, please let me know, is it visible, my screen? Yes, ma'am. Visible. Yes, ma'am. Visible. Yes, ma'am. You are visible, and your screen is also visible, and you are visible, audible both. Okay, but I cannot view my slides here. I don't know why. Okay, no problem. If you are able to see, then it's okay. Now, I was talking about the online teaching and challenges and solutions, especially in this duration of COVID-19. Whatever we were doing in the beginning, और पहले से जो हम लोग करते आ रहे थे, और अगर यहाँ पे हम टीचर्स से अपने बात कर रहे हैं, those who are, especially those who are टीचिंग इन हायर एजुकेशन, आप कभी भी गौर करिएगा अपने एलिजिबिलिटी पे, अपनी जो आपके यूजीसी ने कहा था कि यू शुड हैव दिस थिंग्स एज योर एलिजिबिलिटी. तो कभी देखिएगा कि आपके लिए यूजीसी ने कुछ समय पहले एपीआई 2016 के बाद से जो भी आपके लिए चेंजेस किए थे, वो सारे चेंजेस आईसीटी बेस्ड थे. लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था. ध्यान क्यों नहीं दिया था? क्योंकि हमें लगा चलो हो जाएगा, आईसीटी सब करते हैं, बट इट इज नॉट अ वेरी इजी टास्क टू डील ऑल विद ऑल दीज थिंग्स. तो हुआ क्या उसके बाद, जब पहले हम बहुत ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, आफ्टर COVID-19 नाउ इट इज अ मैंडेटरी फीचर इन एजुकेशन सिस्टम. और ये अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले सारे पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहते हैं हम कि जो भी सिनेरियो चेंज हो रहा है, ये सिनेरियो चेंज होने के साथ में आपको ये वाली क्लासेस, ये लेक्चर्स अटेंड करने के बहुत सारे नेटिकेट्स भी आने चाहिए. You should have knowledge and awareness of using online platforms. If you are not aware, you will not be able to handle all these things in future. होता क्या है कि आप वेबिनार में आते हैं and you take all these things very casually. आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं. How to use these platforms, उसको हम पहले आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे. नेटिकेट्स क्या होते हैं? नेटिकेट्स मीन्स यूजिंग एटिकेट्स ऑफ यूजिंग इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. जो भी हम कर रहे हैं, सबसे पहला काम होता है, जैसे आप ट्रेडिशनल क्लासरूम में आते हैं, आप में से बहुत सारे बीएड और एमएड के टीचर्स भी होंगे. उर्वशी मैम, आप सबको म्यूट कर दीजिएगा और लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है. सपना सिंह अपने को म्यूट करें. यही चीज हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो जब भी आप अपने वेबिनार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठिए, तो सबसे पहले नेटिकेट्स को फॉलो करिए. नेटिकेट्स को फॉलो करने के 2-3 नियम हम आपको बता दें. जो बीएड एमएड के टीचर्स हैं हमारे, वो जानते हैं कि जब भी हम लोग प्रैक्टिस टीचिंग स्टार्ट करवाते हैं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, यू शुड बी लाइक अ टीचर इन द क्लासरूम. whenever you are going inside the classroom, be like a teacher. And be like a teacher means you should be dressed up like that, you should speak like that, you should behave like that. और अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो आप टीचर बनने लायक नहीं हैं. उसी के साथ साथ जैसे ही टीचर क्लासरूम में जाता है, तो वो अपने स्टूडेंट से भी अपेक्षा करता है कि मेरे स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे बैठें. कैसे बैठें? कि they should be in discipline, they should listen the things properly, they should focus on the learning objectives, whatever we are going to teach them. तो यही अपेक्षाएं, अगर सिनेरियो चेंज हो गया है, ऑनलाइन टीचिंग के प्लेटफॉर्म पे हम आ रहे हैं, तो यू शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो. कि हम वेबिनार के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर बैठ रहे हैं, तो हाउ टू सिट, हाउ टू बिहेव इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो सबसे पहले ही आते ही सबसे पहला काम होना चाहिए, इफ यू आर अ लिसनर,
यू शुड म्यूट योरसेल्फ। आपको सिर्फ सुनना है तो आपको अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे एक मुझे मैडम दिख रही हैं, हीरेन मैडम, जिनका माइक खुला हुआ है और वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हिरेन हिरन परमार, हिरन हाँ, मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो ये चीजें खुद सीखिए, आपको बार बार सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप अपने को म्यूट रखिए, और ये कंट्रोल जो कंट्रोल करने वाला है उसको करने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि आपको बार बार वो म्यूट करें अनम्यूट करें। ये व्हाट इज ऑनलाइन एजुकेशन? एंड ऑनलाइन एजुकेशन है कि यू शुड लर्न ऑन योर ओन। आप अपने आप कैसे अपनी चीजों को लर्न करेंगे। तो पहला ये एटिकेट है कि म्यूट योरसेल्फ व्हेनेवर यू आर नीडेड, देन ओनली अनम्यूट योरसेल्फ। नाउ सेकंड थिंग इज, इफ योर वीडियो इज ऑन, सिट इन अ प्रॉपर वे। आपको अगर हम ऑनलाइन चीजें दिखा दें कि हाउ पीपल सिट इन वेबिनार्स, उनको लगता है कोई उन्हें देख नहीं रहा है, एंड यू नो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम recordings are going on, तो how you can expect others that they are not watching you? आप कैसे बैठे हैं, कैसे आप क्लास में कैसे बैठते हैं, आप क्लास में बोलते कैसे हैं, you should behave in that manner only in online platforms also. Sit straight, be cautious, बी अवेयर, ये सब चीजें भी ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिनेरियो चेंज हो रहा है, आपको भविष्य में ये करना ही करना है, इनको अटेंड करना ही करना है, और आपको नहीं जरूरत है, आपको लगता है आप ठीक से नहीं बैठ सकते हैं, तो जस्ट ऑफ योर वीडियो, नो नीड टू ऑन योर वीडियो। देन उसके बाद एक और नेटिकेट होता है। नेटिकेट मीन्स कि जब भी आप किसी का, आप अगर क्लासरूम में पढ़ते हैं तो आप कभी भी टीचर की परमिशन के बिना रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। दिस इज अगेंस्ट कॉपीराइट, दिस इज अगेंस्ट लॉ, कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो व्हाई इन वेबिनार्स, वेबिनार में भी कभी भी किसी की परमिशन के बिना, दिस इज अगेंस्ट लॉ, कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो व्हाई इन वेबिनार्स, वेबिनार में भी कभी भी किसी की परमिशन के बिना रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इवन ऑर्गेनाइजर्स एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जब भी आप भविष्य में करिए तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बार आपको नहीं पता होता है, आप नेग्लिजेंस में, आप इग्नोरेंस में ऐसे काम करते हैं जो बाद में आपको पे कर सकती हैं, चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हम आपको अभी बताएंगे साथ में जब वो करेंगे। तो अब जब हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं आपके, यानी वी आर मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टीचिंग टू ऑनलाइन टीचिंग। अगर ट्रेडिशनल से ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं तो चेंजेस क्या हो रहे हैं? चेंजेस ये हो रहे हैं कि नाउ एवरी स्पेस इज अ लर्निंग स्पेस। आप मेरा स्लाइड देख पा रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। उर्वशी मैम, मेरी स्लाइड दिख रही है? हाँ मैम, दिख रही है। पता नहीं क्यों हमारे उसमें नहीं आ रही है, मैं नहीं देख पा रही हूँ उसको। चलिए कोई नहीं। हाँ, एवरी स्पेस इज अ लर्निंग स्पेस। आप कहीं भी जाइए दुनिया में, व्हाई इट इज अ लर्निंग स्पेस? बिकॉज नाउ यू आर इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। अब वर्चुअल वर्ल्ड में आप जहां चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। और आप जब लर्निंग कर सकते हैं तो आपके लिए क्या होता है, बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं। Next is learning is becoming more virtual and virtual activities are actually becoming more physical. अब आप देखिए कि जो आप ऑनलाइन चीजें, कोई नाउ it is not impossible, it is not everything whatever you want you can get through virtual world. कोई भी चीज, आप क्लासरूम का सिनेरियो देखिए, आप क्लास में बुक्स चाहते थे, those books you are getting in virtual world. आप टीचर से इंटरेक्शन करना चाहते थे, दोज इंटरेक्शन यू कैन डू इन वर्चुअल वर्ल्ड, एवरीथिंग। यानी आपका जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो एक फिजिकल वर्ल्ड की तरह हो गया है। आपको बिल्कुल भी उसमें जरूरत नहीं पड़ती है कि आप उसको कैसे बिहेव करें, कैसे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल आपके सिंपल वर्चुअल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड में चेंज हो गया है। तो जब ये सब चेंजेस आ रहे हैं तो कैसे more and more classrooms are becoming place where knowledge is created.
अभी जब हम बात करते हैं एंड स्पेशली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हायर एजुकेशन, आप इंटरमीडिएट से नीचे के बच्चों को ले लीजिए, आप इंटरमीडिएट से ऊपर के बच्चों को ले लीजिए। होता क्या है कि एट डिग्री लेवल व्हाट वी डू जनरली, वी बिलो इंटरमीडिएट लेवल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉलेज को कंज्यूम करते हैं। वट एवर यू से वो स्टूडेंट उसको कंज्यूम कर लेगा और आप उससे कहते हैं जो कुछ हमने पढ़ाया भैया एग्जाम में वही लिख के आना। लेकिन एट हायर लेवल व्हाट यू डू, you try to convince him or her to create your own knowledge. आप कहते हैं I'm giving you a guidance and you have to create your own knowledge. हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, हम आपको एक गाइडलाइन दे रहे हैं, आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है, आपको एग्जामिनेशन में अपने हिसाब से चीजों को लिखना है। अब बहुत सारी चीजें जो ट्रेडिशनल क्लासरूम में होती थी, द सेम थिंग यू हैव टू डू इन योर वर्चुअल वर्ल्ड ऑल्सो। आपको 3 बातों का बहुत ध्यान रखना है इसमें, और 3 बातें वो क्या हैं कि जब आप मशीनों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, मशीनों के साथ इंटरेक्शन करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि मशीनों में इमोशनल एस्पेक्ट, वैल्यू एनहांस, ये सब चीजें नहीं होती हैं, बट यू नीड टू मेक योर मशीन्स विद ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहला है इसमें ह्यूमन टच। आप कैसे ह्यूमन टच दे सकते हैं मशीनों से जब आप पढ़ा रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक टीचर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए। एज अ टीचर, सपोज योर स्टूडेंट इज आंसरिंग इन अ वेरी गुड मैनर एंड व्हाट यू विल डू, आप उससे कह देते हैं शाबाश, कितना अच्छा तुमने आंसर बताया। लेकिन मशीन ये चीज नहीं कहती है। लेकिन जब आप मशीन के थ्रू पढ़ा रहे हैं तब आपको उसको कैसे मोटिवेट करना है, कैसे ह्यूमन टच का एस्पेक्ट वहां देना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड थिंग इज वैल्यू एनहांस्ड। आप क्लासरूम में वैल्यूज इनकलकेट कर सकते हैं, इट इज वेरी इजी फॉर यू, आप चीजों को बीच बीच में बच्चों को बताते हैं, बट हाउ यू विल डू इन योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अगर आप ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में नहीं कर पा रहे हैं तो यानी आप मशीन, आप मैकेनिकल पढ़ा रहे हैं, तो यू शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो। एंड थर्ड है, इट शुड बी, पहला हमने आपको बताया ह्यूमन टच शुड बी देयर, then value enhanced should be there, value enhancing should be there, and emotional aspects should also be there. अभी क्या हो रहा है कि जो हम वेबिनार्स करते हैं और वेबिनार्स में मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग दीज थिंग्स इन अ मैकेनिकल मैनर, कि हमने आधा घंटा 1 घंटा रिसोर्स पर्सन को कह दिया और रिसोर्स पर्सन चीजों को बता रहे हैं। आधे लोग हो सकता है सो रहे हों, कैमरा बंद करके ध्यान न दे रहे हो, या बढ़िया नींद ले रहे हो, आप नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो आपके रिसोर्स, वो आपस में अगर इमोशनली, यानी आप उनके दिल दिमाग को छूते हुए बात कर रहे हैं और इंटरेक्शन कर रहे हैं, तब आपका जो ये मशीनी जो टीचिंग है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाती है, उसमें इमोशनल टच आता है। तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। यानी अब हमारे जो आगे का जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अब जो हमारे पास टीचिंग आएगी, जो हमारा सिनेरियो होगा, दैट विल बी टोटली डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होगा? ब्लेंडिंग वर्ड हमारा अब इस समय मिक्स्ड जो वर्ड है वो आ रहा है, क्योंकि अब आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं। जैसे हेमलता मैम भी जानती हैं, मान लीजिए आपके स्टूडेंट्स हैं और आपने एक वर्क दे रखा है, बच्चों को कह दिया आपने, या एज ए उर्वशी मैम ने कहा कि आप सभी बच्चों को, बीएड के स्टूडेंट्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई लाइब्रेरी को विजिट करके आना है और उसकी रिपोर्ट बनानी है। अब आपने ये दिया था लॉकडाउन के पहले, जब आपने ये वर्क दिया था और लॉकडाउन हो गया, पूरी सिचुएशंस चेंज हो गई हैं ना, हाउ यू विल कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर। अब देखिए आपके ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको नेटिकेट सिखाना बहुत जरूरी है। जब आप बैठे हैं तो आपको स्क्रीन को टच नहीं करना, ऑल द टाइम यू ऑल आर शेयरिंग योर ओन स्क्रीन इन दिस। अमित यादव, दिव्या, दे ऑल आर शेयरिंग देयर स्क्रीन्स। इसको सीखेंगे नहीं तो आपको दिक्कत होगी कल को। तो जैसे आपने वर्क दिया था बीएड स्टूडेंट्स को कि आप जाएंगे, लाइब्रेरी विजिट करेंगे और इस वर्क को करके लेके आएंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे। लॉकडाउन हो गया, नाउ सिनेरियो हैज बीन चेंज।
Now, how you will conduct this study, how you will go to those library, कैसे इस काम को करेंगे? सिंपल वे में काम करने के लिए आप क्या करेंगे? आप चीजों को, वही चीजों को कन्वर्ट करेंगे अपने वर्चुअल एक्टिविटीज के थ्रू। वर्चुअल एक्टिविटीज कैसे होंगी आपकी? कि आप वही चीज, यानी आपको कोई लाइब्रेरी विजिट करनी है तो लाइब्रेरी विजिट करने के लिए आप वर्चुअल लाइब्रेरी को विजिट करेंगे। आप वर्चुअल लाइब्रेरी कैसे विजिट करेंगे? यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेज वेबसाइट, यू कैन व्यू their whole library there, and then you can make your report there, and then you can write your report there. So it is now easy. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि ये आप घर बैठे कर रहे हैं, तो उसको करने के लिए भी आपके एथिक्स एंड वैल्यूज होनी चाहिए। अब इसके बाद योर नेक्स्ट इज कि द बेस्ट प्लेसेस for education will bring technology and space together in a innovative way। यानी यहाँ पे क्या है? टेक्नोलॉजी और जो और भी चीजें हैं, यानी जो हमारी और आपकी दूरी थी, यानी आपने कई बार वर्ड सुना होगा। उर्वशी मैम, मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं? क्योंकि स्क्रीन पे मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है। कोई अमित यादव दिख रहे हैं? हाँ, अब हो गया। तो ये जो स्पेस है, इसको हमें कम कैसे करना है, कैसे हम इनको इनोवेटिव वेज में यूज करेंगे, ये भी अब सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। नाउ गैजेट्स हैव द पोटेंशियल टू चेंज द एजुकेशनल सिस्टम फॉर बेटर। जितने भी हमारे गैजेट्स हैं उनको भी चेंज करने की जरूरत हो गई है। अब उन गैजेट्स को, फॉर एग्जाम्पल अर्लियर मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू, laptops, mobiles, all these were meant to save our time, but most of the time we all were wasting in these things। लेकिन अब क्या है? अब हम कोशिश करते हैं कि लैपटॉप और जो मोबाइल हैं इनका हम यूज अपने अपने उसके लिए करें, अपनी लर्निंग के लिए करें, अपने एनहांसमेंट के लिए करें, अपने करियर को बनाने के लिए करें। तो ये सारी चीजें हमारे लिए, क्यों? क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गया। अब अगर हम सारा टाइम वेस्ट करेंगे इन चीजों में तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और सरवाइव नहीं कर पाएंगे यानी इफ वी विल नॉट चेंज आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर, देन वी विल नॉट बी एबल टू सरवाइव। और कहा भी जाता है, गौतम बुद्ध ने कहा है कि देयर इज ओनली वन लॉ विच इज अनचेंजेबल, दैट इज लॉ ऑफ चेंज। एक ही नियम ऐसा है जो अपरिवर्तनीय है, वो है परिवर्तन का नियम। तो समय के साथ हर चीज जो आज है वो आज से 10 साल बाद हो सकता है बिल्कुल चेंज हो जाए, तब आपको अपने आप को उसी तरह से चेंज करना है। इसके लिए एक हम बहुत सुंदर सी कहानी आपको सुनाते हैं, और आप लोग ने भी बचपन में सुनी होगी ये कहानी, जिसमें था कि एक बार कुछ मछलियां होती हैं जो एक छोटे से पॉन्ड में रहती हैं और बड़ी खुश होती हैं, इधर से उधर तैरती रहती हैं। तो एक बार एक इंसान वहां से गुजरता है, उसको बड़ा लालच आता है देख के, और वो कहता है कि मछलियों से कहता है, अरे इतने छोटे से पॉन्ड में तुम लोग कैसे सरवाइव करते हो, कैसे रहते हो? चलो तुम लोगों को मैं बहुत बड़े से एक तालाब में या एक बहुत बड़े से समुद्र में लेके जाता हूँ। तो कुछ मछलियां थी उसके झांसे में आ गई, कह रहे हाँ हाँ हाँ। तो वो खुश होके फिर वो क्या करता था, रोज आता था और अपनी अंजुली में यानी हाथ से यूं उठाता था और कुछ मछलियों को ले जाता था। लेकिन आप जानते हैं इंसान की फितरत कि वो उनको ले जाता था और खा जाता था। उन्हीं मछलियों में से एक मछली बहुत होशियार थी, और वो मछली उसने जैसे ही वो आता था उसको उठाने के लिए, वो तुरंत वहां से भाग जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो उसके चंगुल में फंस गई। तो जैसे ही फंसी, तो फंसने के बाद उसने अपने आप को डेड शो कर दिया, उसने अपनी सांस रोक ली, बिल्कुल अकड़ गई। तो इंसान ने सोचा कि अरे ये मछली तो मरी हुई है, अगर हम इसको ले जाते हैं तो ये औरों को भी खराब कर देगी, औरों को भी सड़ा देगी। तो उसने तुरंत उस मछली को लिया, वापस उसमें छोड़ दिया तालाब में। जैसे ही छोड़ा तो उस मछली ने तुरंत अपने आप को रिवाइव किया और दोबारा फिर से सांस लेने लग गई। सांस लेने के बाद यहाँ पे जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आप अपने आप को समय के अनुसार चेंज नहीं करते हैं तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है।
यानी समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलिए, और नहीं बदलेंगे तो आपके लिए एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो सिनेरियो चेंज हुआ है, ट्राई टू चेंज योर सेल्फ ऑल्सो, ट्राई टू चेंज योर स्टाइल ऑफ लर्निंग, स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑल्सो। सब चीजें आप चेंज नहीं करेंगे तो आप उसको लर्न नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए, अब हमारे पास जमाना किस चीज का आ रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन। इसको वी कैन कॉल इट ई लर्निंग ऑल्सो, वी कैन कॉल इट साइबर लर्निंग ऑल्सो, वी कैन कॉल इट डिजिटल लर्निंग ऑल्सो, वी कैन कॉल इट वर्चुअल लर्निंग ऑल्सो। सब कुछ इसको हम कह सकते हैं, लेकिन पर्पस क्या है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं में हमको सरवाइव कैसे करना है और कैसे सीखना है चीजों को। अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो बीच आप अपने चैट बॉक्स में डालिएगा, तो उर्वशी मैम हमको कहेंगे, हम उन्हीं की क्वेरीज आपकी बीच बीच में फुलफिल करते रहेंगे। Now, technological innovations affect all aspects of our lives, personal, professional and academic, everything. आप देखिए, आपकी पर्सनल हो चाहे एकेडमिक हो चाहे रिसर्च हो, ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं। एंड नाउ वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ जनरेशंस आल्सो। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी एक एजुकेशनिस्ट ने की थी कि पहले हमारे पास क्या होता था, जनरली वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ जनरेशंस, ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन। और इसका एग्जाम्पल दें कि अगर मान लीजिए आज का जो बच्चा है अपने घर में सुबह उठते ही गाने लगा देता है अरिजीत सिंह के, तो उसके फादर कहते हैं, ओ ये कौन से गाने लगा दिए, गाने तो हुआ करते थे किशोर कुमार के, क्या बढ़िया गाने होते थे। तो तब उस समय उसके फादर को ये याद आता है कि जब मैं किशोर कुमार के गाने लगाता था तो मेरे फादर कहते थे, अरे ये कोई गाने हैं, गाने तो हुआ करते थे सहगल के। यानी हर व्यक्ति अपने स्थान पे गलत नहीं है, उसकी अपने जनरेशन की नीड्स होती हैं, अपने जनरेशन के अनुसार वो वर्क करता है। तो इस तरह से जो हमारी अभी की जो जनरेशन है, नाउ वी आर हैविंग 3 काइंड्स ऑफ जनरेशंस, जिसको हम कहते हैं डिजिटल जनरेशन। और डिजिटल जनरेशन में क्या होता है, आपने देखा होगा, कई बार आपने महसूस किया होगा, ये हो सकता है आपने अपने बच्चों के साथ महसूस किया हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स के साथ महसूस किया हो। तो हमारे पास जो एक सबसे पहले की जनरेशन है, वी कॉल देम डिजिटल इमिग्रेंट्स। डिजिटल इमिग्रेंट्स मीन्स दोज हु बोर्न बिफोर द इमर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी जो कुछ हमारे पास आज टेक्नोलॉजी दिख रही है उसके जन्म होने से पहले उनका जन्म हुआ था, एंड स्टिल दे लव टू वर्क ऑन पेपर, मीन्स दे वर्क मैनुअली, एवरीथिंग दे नोट इट डाउन, एवरीथिंग, मोबाइल नंबर तक वो अपनी डायरी में आज भी नोट करते हैं, वो जो जनरेशन है। उसके अलावा स्टिल दे लव टू रीड न्यूज़पेपर्स। तो ये जो डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं, ये अपने को धीरे धीरे कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने को पूरी तरह 100% चेंज नहीं कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के जमाने के हिसाब से। नाउ सेकेंड जनरेशन इज कॉल्ड डिजिटल नेटिव्स। हो सकता है हमारे पास इस समय जो वेबिनार में जितने लोग बैठे हैं वो लोग डिजिटल नेटिव्स हों। डिजिटल नेटिव्स में जो कस्प पे, जो बीच की जनरेशन है कि कुछ टेक्नोलॉजी पहले हो चुकी थी, कुछ बाद में हुई है, एंड दे ट्राई टू अडॉप्ट देमसेल्व्स, कि वो कभी मैनुअल भी काम करते हैं, कभी मोबाइल और लैपटॉप में भी यूज करते हैं, सब चीजें। बट नाउ राइट नाउ वी आर हैविंग अदर टाइप ऑफ जनरेशन। वो जो जनरेशन उसको हम कहते हैं डिजिटल इनहेबिटेंट्स। डिजिटल इनहेबिटेंट्स कि दे लव टू वर्क विथ टेक्नोलॉजी। उनको नहीं, उनको अगर आप कहेंगे, अगर मान लीजिए आपकी क्लास में बैठे हैं और इफ यू विल अलाउ मोबाइल एंड अदर थिंग्स और टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, तो वो कभी भी पेपर पेन निकाल कर आपकी चीजों को नोट करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि जितनी चीजें हमको मैडम या सर बता रहे हैं, आई कैन डायरेक्टली गेट दोज थिंग्स फ्रॉम इंटरनेट ऑल्सो, आई कैन रिकॉर्ड देम ऑल्सो, आई कैन यूज माई टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट दीज थिंग्स। तो जो ये जनरेशन है और जो डिजिटल इनहेबिटेंट्स और डिजिटल नेटिव, डिजिटल इमिग्रेंट्स है, इनके बीच में कहीं ना कहीं गैप है। पढ़ाने वाला कौन है? डिजिटल इमिग्रेंट्स या डिजिटल नेटिव्स। पढ़ने वाला कौन है? डिजिटल इनहेबिटेंट्स। तो जब ये अंतर है दोनों में, तो कहीं ना कहीं
ये गैप को अगर हम दूर नहीं करते हैं तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। अभी क्या है, अभी हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट नीड है वो नीड हो गई है वाईफाई। अगर हमारे पास एक दिन भी इंटरनेट ना हो, और ये ग्लिचेस आप समझते हैं, जैसे कि हम लोग के साथ परसों प्रॉब्लम आई कि जरा सा हमारे पास इंटरनेट या वाईफाई ने प्रॉब्लम क्रिएट किया तो हमारा सारा काम रुक गया, हम हैंडीकैप टाइप से हो जाते हैं। तो जब ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, व्हाई टू नॉट अडॉप्ट दीज थिंग्स। और ये चीजों को अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पर हमें एज अ लेमैन या एज अ एंटरटेनर या एज इस तरह से चीजों का यूज नहीं करना है, बिकॉज दिस इज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। सो I'll talk about only as a learner and as a teacher how we can use these platforms. यहाँ पे कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आप में से या तो चैट बॉक्स में डालिएगा या एक दो लोग अनम्यूट करके जवाब दीजिएगा कि अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जिसको कि वो अपने एक अस्त्र के रूप में यूज कर सकता है। बताइए कि एक टीचर के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जो उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार होने के साथ साथ उसके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी होती है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं नॉलेज, यस, कम्युनिकेशन, हाँ, टीचिंग एड्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्किल्स, एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर आप लोग दे रहे हैं। यस, दिस इज राइट। द बेस्ट टेक्नोलॉजी अ टीचर हैज कम्युनिकेशन। आपके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन एक शब्द याद रखिएगा, हैविंग नॉलेज एंड एक्सप्रेसिंग नॉलेज बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट। आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, but you are not having the ability to communicate your knowledge to your audience, it means you have nothing. आपके पास कुछ नहीं, आप नहीं कर सकते उन चीजों का। और जब आज के आप देखिए, आज के दौर में, आज के और पहले के दौर में हम किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को, किसी भी विद्वान व्यक्ति को बुला के क्लासरूम में या कहीं पर भी उनको हम फ्लाइट से बुला लेते थे, हम उनको अपने कॉलेज के सेमिनार में बुला लेते थे और आराम से लेक्चर करवा लेते थे। लेकिन आज उन्हीं विद्वान व्यक्ति में से शायद 10% लोग भी ऑनलाइन लेक्चर देने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो विद्वान वो हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन दे आर हैविंग वेरी गुड स्किल, बट इन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे आर नॉट सो इफेक्टिव। तो ये सारी चीजें भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि टीचर इज चेंजिंग देमसेल्फ, herself or himself or himself or not। तो ये चीजें आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, आउटडेटेड होने लगेंगे धीरे धीरे। तो सो यू नीड टू चेंज योरसेल्फ इन ऑल द एस्पेक्ट्स। आपको कंप्यूटर के थ्रू, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कैसे पढ़ना और पढ़ाना है। अगर यहाँ पर ऑनलाइन की बात भी करें हम, या कुछ चीजों को जैसे कि बड़ी बड़ी सुंदर लगती हैं व्हाट्सएप पे इस तरह की लाइनें अक्सर पढ़ने को मिलती हैं कि दौर कागजी था, देर तक खतों में, या कह सकते हैं कागजों में, दौर कागजी था, देर तक कागजों में जज्बात महफूज रहते थे, और मशीनी दौर है साहब, उंगलियों से डिलीट कर दी जाती हैं उम्र भर की यादें। यानी कि आप मशीन में कुछ भी कर रहे हैं, वो इतना इम्पैक्ट ही नहीं आप पे छोड़ती हैं, और आपने एक डिलीट मारा और सब कुछ गायब, खत्म। यानी आपके उसमें, आपके जो वर्चुअल लर्निंग है उसमें अगेन आई एम एम्फेसिसिंग ऑन दोज थिंग्स दैट it should have human touch, it should be value enhanced, and there should be emotional aspect। ये तीन चीजें नहीं है तो तुरंत ये चीजें आपके माइंड से, स्टूडेंट्स के माइंड से हट जाएंगी। अब देखिए, जो हमारा पुराना मेथड था वो क्या था कि टीचर ज्ञान को बच्चे के दिमाग में उड़ेल रहा है और अब मशीनें ये कर रही हैं, और ये तीन चीजों का अगर मिसिंग पार्ट है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी कोविड-19 के बाद क्या हुआ है कि आपके कुछ मेथड्स, चलिए फिर से एक क्वेश्चन कि विच इज कॉल्ड एवरग्रीन टीचिंग मेथड। कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसको हम एवरग्रीन मेथड कहते हैं, जो हमेशा बहुत इफेक्टिव रहता है
और सारे मेथड्स का बेस होता है? बताइए अगेन इन चैट बॉक्स, या कुछ लोग वैसे बताना चाहिए। यस, लेक्चर मेथड, वेरी गुड। लेकिन सब लोग कहते हैं लेक्चर मेथड इज वेरी मोनोटनस, बोरिंग होता है। टीचिंग एड्स आर नॉट टीचिंग मेथड्स, ब्लैक बोर्ड, चॉक, नहीं, आप लोग तो टीचिंग एड बताने लगे हैं। चलिए तो हम फिर से इसमें आते हैं कि हमारे पास जो सबसे अच्छा और एवरग्रीन मेथड है दैट इज लेक्चर मेथड, एंड दिस इज ट्रू। लेक्चर मेथड क्या है? आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहिए, लेक्चर मेथड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, लेकिन अगर आप उसको एक सिंपल वे में बोलते जाते हैं देन इट बिकम मोनोटनस, और जब मोनोटनस हो जाता है तो सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए जो स्लाइड में भी आपको दिख रहा है कि न्यू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रादर देन एप्लीकेशंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि जो नई चीजें आ रही हैं जरूरी नहीं है हम उनको अपनाएं, हम पुरानी चीजों को भी नए तरीके से अगर अपनाते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आज के जमाने में हम बात करें तो एम्बेसडर कार है, HMT घड़ियां हैं, इतनी क्वालिटी होते हुए भी थोड़ी सी आउटडेटेड हो रही, लोग उनको खरीदना कम पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने को उस हिसाब से, नए जमाने के हिसाब से मॉडिफाई नहीं किया। क्वालिटी होते हुए भी अब क्या है, लोग क्वालिटी हो ना हो कौन सी चीजें पसंद करते हैं? जो डिजाइनर होती हैं। तो ऐसे ही जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो जब लेक्चर मेथड की, कि लेक्चर मेथड को अगर हम डिजाइनर लेक्चर नहीं बनाते हैं तो वो इफेक्टिवनेस उसकी कम होने लगती है, और या कह सकते हैं खत्म होने लगती है। इसीलिए हम लोग BEd के स्टूडेंट्स को कहते हैं ट्राई टू अडॉप्ट दिस कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। आप अपने लेक्चर को बोलिए लेकिन उसमें एज टीचिंग टूल कंप्यूटर को यूज करिए, एज अ लर्नर इसको यूज करिए। तो यानी कि पुरानी चीजों को नए तरीके से प्रेजेंट करना भी क्या है, आपके आज के जमाने की चीजें। यानी जब कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं तो हम अब जो भी लर्न करेंगे, हम पुरानी टेक्नोलॉजी को हमें नए तरीके से यूज करना होगा। जो नहीं करेंगे तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और चैलेंज होगा तो आप उस चैलेंज को जब तक अपॉर्चुनिटी में चेंज नहीं करेंगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। इसके अलावा जब हम लिटरेसी की बात करते हैं, अर्लियर द मीनिंग ऑफ लिटरेसी वाज व्हाट? एक सिंपल था, क्या था? कि व्हाटएवर द पर्सन हु कैन रीड और राइट, वो लिटरेट कहलाता था। ठीक है, वो लिटरेट कहलाता था। लेकिन आज के जमाने में लिटरेट हम किसको कहते हैं? द पर्सन हु इज विलिंग टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। तो जो अगर आप आज के जमाने में, यानी अब तो हम हर चीज की बात कोविड-19 के बाद की ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी सिनेरियो एकदम से चेंज हुआ है। अभी अगर कोविड ना हुआ होता और हम कहते कि उर्वशी मैम आपको एक वेबिनार कराना है, आप वेबिनार करा दीजिए, तो शायद उनके भी हाथ पैर फूल जाते, अरे ये कैसे कराएंगे, कैसे होगा। सोच के ही डर लगता था कि वेबिनार जैसी चीजें कैसे हो सकती हैं। लेकिन अब क्या है, अब आप बस कहने की देर है, वेबिनार बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं। बिकॉज नाउ वी आर अडॉप्टिंग, वी आर ट्राइंग टू यूज दीज थिंग्स। अभी बस साल भर की देर है, या आप कह लीजिए 6 महीने की देर है, कि जितना हमारा इवेल्युएशन सिस्टम है, यानी हमारी जो आप टीचिंग के प्रोसेस देखें, यू आर हैविंग 3 phases ऑफ टीचिंग, प्री फेज, इंटरैक्टिव फेज एंड पोस्ट फेज। प्री फेज में आपने ऑनलाइन टीचिंग को अपना लिया है, यानी आप जितना प्लानिंग पार्ट है, लेसन प्लानिंग है, एवरीथिंग यू आर डूइंग ऑनलाइन। इंटरैक्टिव फेज, इन दैट आल्सो यू आर अडॉप्टिंग इंटरैक्शन थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म। अभी थोड़ा प्रॉब्लम किसमें है? पोस्ट फेज में, यानी इवेल्युएशन पार्ट। अभी हमारे लिए, एक हमारे सिस्टम के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम इवेल्युएशन कैसे करें स्टूडेंट्स का। और इवेल्युएशन भी 20-25 की क्लास हो तो चलो हम कैसे भी कर ले, बट प्रॉब्लम इज कि जहां पे हजारों बच्चा है हमारे सामने, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव सिस्टम है कि हमें डिस्क्रिप्टिव मोड में ही एग्जाम लेना है, ऑब्जेक्टिव नहीं लेना है। तो हम कैसे इन चीजों को करें? तो पोस्ट फेज में अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन विद इन 6 months हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमारी दूर हो जाएं और हम सारे इन सिस्टम को अपना सके।
अभी देखिए बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो इंडिया की, उन्होंने अपने बच्चों के एडमिशन ले लिए। एडमिशन यानी जो नेक्स्ट न्यू क्लासेस हैं उनके एडमिशन कैसे ले लिए, बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड दैट मोड आल्सो, इवैल्यूएशन मोड, जो उन्होंने पूरा जो उसको कैसे एडमिशन लेना है, एंट्रेंस कराना है कि हमको इंटरव्यू लेना है, तो उन्होंने इंटरव्यू मोड अपनाया, गूगल मीट से एक एक बच्चे का इंटरव्यू लिया और जो उनको काबिल लगा उन्होंने एडमिशन ले लिया, यानी उन्होंने अपनी सीट सिक्योर कर ली। इससे पहले कि वो बच्चे कहीं और जाते, उन्होंने कहा नहीं हमने आपको एडमिशन दे दिया। क्यों? बिकॉज दे नो कि मार्केट क्या है इस समय, हमारी वैल्यू क्या है, कैसे हम इन चीजों को करेंगे। तो इसलिए लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, दिस इज द नीड ऑफ द आर। इसके बाद जो चैलेंजेस की हम बात करते हैं कि हमारे पास और आपके पास एक्चुअल में चैलेंजेस क्या है इस समय, और वो भी कोविड-19 के बाद क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले है कि एडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल। एडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हम अडेप्ट करें तो करें कैसे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी आप देखिए, अगर आपके पास फॉरेन कंट्रीज के ये टूल ना हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल ना हो, तो आप क्या करते? तब आप स्ट्रगल ही करते रह जाते और आप इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना हो पाते। स्टिल इंडिया इज ट्राइंग टू गेट गुड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, लेकिन अभी हमारे पास उतने अच्छे टूल्स नहीं आ पाए हैं कि हम इनको कॉम्पीट कर सकें, और हम लोग मजबूर हैं इस तरह की चीजों को अडॉप्ट करने के लिए। दूसरा है हमारे पास की क्रेडिबिलिटी, कि हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जितना भी वर्चुअल वर्ल्ड में हम चीजों को यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग जूम, आप देखिए जूम को जैसे ही यूज किया था कुछ समय बाद ही एक गाइडलाइन आ गई कि यू शुड नॉट यूज दिस पर्टिकुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। क्यों? क्योंकि इससे आपका सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, आपके लैपटॉप का, मोबाइल का डेटा कहीं भी कुछ भी हैक हो सकता है। तो ये सारी चीजें एक चैलेंज है आपके लिए। इसके बाद है प्रॉब्लम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन इज दैट कि जो हमारे पास, मान लीजिए हम लोग, हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, हम उनको ऑनलाइन क्लास देना चाहते हैं, उसमें से 100 बच्चों में से 80% स्टूडेंट्स या 90% स्टूडेंट्स के पास क्या प्रॉब्लम आएगी कि उनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आउटडेटेड होगा। वो हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स ही अपने में यूज ना कर पाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स, यानी ये भी एक चैलेंज है हम लोगों के लिए कि ऐसी चीजों के लिए हम क्या करें, कैसे अपने बच्चों को अपडेटेड करें। हाँ उर्वशी मैम, मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं कि नहीं? ये बीच में बहुत सारे लोग हैं जो कि आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो, नो Yes, प्रॉब्लम। ma'am. ये भी लर्निंग है, धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज हाँ, करना चाहिए। जैसे प्लीज शैतान अपनी स्क्रीन को टच ना करें। हाँ वही, वो शैतान बच्चे जैसे क्यूरियस होते हैं चीजों को देखने के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बीच बीच में। हाँ, नाउ टेक्निकल इशू, और टेक्निकल इश्यूज आप देख ही रहे होंगे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे ही ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बीच में कोई आके उसमें लाइंस ड्रॉ करने लगता है, यानी वो व्हाइट बोर्ड यूज करने लगते हैं, कभी क्रॉस लगा देते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। प्लस it is not necessary that we all are computer professional or we are having computer literacy. हर किसी के पास ये कॉम्पिटेंसी नहीं होती और हर किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होता है। आज हमारी मजबूरी है कंप्यूटर की चीजों को सीखना, तो ये भी एक चैलेंज है कि हमें किस हद तक चीजें आनी चाहिए। और एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जब हम इसका सोल्यूशन आपको बताएंगे, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली जो चीजें हैं कि हमको किस हद तक ये चीजें सीखने की जरूरत है। क्योंकि हम आजकल क्या कर रहे हैं, अगला वेबिनार करा रहा है तो हम भी करा लें, अगला ये कर रहा है तो हम भी कर लें। नो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यू शुड गो इन दैट वे ओनली। फिर नेक्स्ट चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट, और ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अगर अभी हम हेमलता मैम से पूछ ले तो वो सबसे पहले कहेंगे यस, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दीज डेज। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेज करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वी हैव टू लुक आफ्टर आवर हाउस ऑल्सो, वी हैव टू लुक आफ्टर आवर कॉलेज एक्टिविटीज ऑल्सो,
ऑनलाइन लर्निंग ऑल्सो, टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो, और जितना हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको देखते हुए इसी 24 घंटे में हमें सब कुछ मैनेज करना है। तो इस टाइम को हम मैनेज कैसे करें? देन सेल्फ मोटिवेशन टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, जितनी चीजें हम यहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम सेल्फ मोटिवेटेड कैसे हों। और इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज चैलेंज ऑफ हेल्थ। हेल्थ का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है सबके साथ में कि आईज में स्ट्रेन, बैक एक, जो हैंड्स प्रॉब्लम, ये सब चीजें। और इसके लिए अगर आपने अभी से अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किए हुए, मतलब अच्छी तरह से, और 3 महीने में अगर इफ यू आर सफरिंग विद एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और हेल्थ इश्यूज, तो आप समझ लीजिए कि फ्यूचर में आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो, कि ये जो चैलेंज है सबसे पहले, यानी आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ी नियामत है, उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आईज को प्रोटेक्ट कैसे रखें, कैसे आप चीजों को। तो इन सब चैलेंजेस के बारे में हम आपसे फिर बात करेंगे कि इन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस क्या हैं। जैसे कि इसमें बाकी चीजें बहुत जनरल हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट के लिए हमेशा अडॉप्ट दैट फॉर्मूला 3M। 3M का फॉर्मूला आप हमेशा अडॉप्ट करके रखिए। अडॉप्ट कैसे करना है कि फर्स्ट M इज मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट। आप अपना एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, जो भी आप टारगेट लेके चलते हैं, वो एक टारगेट पहले से बनाकर रखिए। वो टारगेट आप ऐसा बनाइए कि वेदर यू कैन अचीव दैट टारगेट और नॉट, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप टीचर हो। एज अ टीचर, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर, मेक योर होल शीट और स्ट्रक्चर व्हाट यू विल डू विद इन अ डे, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके, क्योंकि जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट द 3H। 3H का मतलब हेड, हार्ट एंड हैंड्स, यानी हमें अपनी पूरी पर्सनालिटी को भी ध्यान में रखना है। पूरी पर्सनालिटी को कैसे ध्यान रखना है कि एनहांसिंग योर नॉलेज पार्ट, एनहांसिंग योर इमोशनल एस्पेक्ट, एनहांसिंग योर स्किल्स। तो आपने जो सेल्फ मैनेजमेंट की बात की है उसमें ये तीनों एस्पेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं तो सेकंड है आपका मॉनिटरिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में आपने जो टारगेट बनाया था उस टारगेट को आपको देखना है कि वेदर यू आर एबल टू अचीव दैट टारगेट और नॉट। अगर आपको एक हफ्ते में या एक दिन में पता चल जाएगा कि हाँ हमने ये टारगेट तो बनाया था बट आई एम नॉट एबल टू अचीव दैट टारगेट, और नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो कारण क्या है? मीन्स यू शुड फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यानी आपने बना लिया कि नहीं हम तो एक हफ्ते के अंदर 5 वीडियो डेवलप करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, या एज ए स्टूडेंट हम तो ये काम कर लेंगे, लेकिन आपने जब मॉनिटर किया तो देखा कि नहीं मेरी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, हम हफ्ते में एक ही वीडियो बना सकते हैं या एक महीने में एक ही वीडियो बना सकते हैं, तो दैट इज सफिशिएंट। आप अपनी चीजों को अपनी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग ही इस वर्चुअल वर्ल्ड में मैनेज करिए, वरना हेल्थ इश्यूज 100% आपको घेर लेंगे। और सिर्फ कहने की बात है कि ये ऑनलाइन चीजें आपको शुगर या ब्लड प्रेशर नहीं देती हैं, ये चीजें भी आपके हेल्थ, जो नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये इंक्रीज करती हैं। ये आपके स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, स्ट्रेस आपके शुगर को बढ़ाएगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आपको होने लगेंगी। सो फर्स्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट, सेकेंड इज सेल्फ मॉनिटरिंग, एंड नाउ थर्ड M इज मॉडिफिकेशन। आपने जब अपने को मैनेज किया सारी चीजें, फिर आपने मॉनिटर किया कि आप कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? यू विल मॉडिफाई योरसेल्फ। आप फिर से अपना शेड्यूल बनाएंगे, मॉडिफाई करेंगे कि हाँ हमसे इतना हो सकता है तो वी शुड डू लाइक दिस। आप दुनिया के कंपटीशन में बिल्कुल भी मत जाइए। अगर आप दुनिया के कंपटीशन में गए तो जब आप बीमार पड़ेंगे नो वन विल बी देयर टू लुक आफ्टर यू, चाहे कोई कितना कहता रहे आपसे। जब हेल्थ खराब होती है या जरा भी सर दर्द होता है तो झेलता कौन है? सिर्फ आप, दूसरा नहीं। इसलिए
focus on your 3M: self-management, self-monitoring, and self-modification according to your competency and commitment and capability. ये चीजें को ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से उर्वशी मैम थोड़ा टाइम भी बताइएगा जिससे मैं उसी हिसाब से इसको आगे बढ़ाऊं, और क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस आप। यस मैम। हाँ 11:30 टाइम इज। हाँ टाइम हो गया है 11:30, तो हम थोड़ी देर और करके उसके बाद आपसे क्वेश्चंस लेंगे। हाँ अब देखिए इसमें, हाँ अब जो हम बात कर रहे थे एज अ टीचर, यहाँ पे थोड़ी सी बात हम करेंगे कि ये चैलेंजेस की बात की हमने, इन चैलेंजेस के सोल्यूशन क्या है, ये बिल्कुल एक लेमैन की तरह हमने बात की। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द कंप्यूटर प्रोफेशनल या प्रोग्रामर या उसकी तरह। हम एक टीचर हैं, एज अ टीचर हाउ मच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वी शुड यूज, हाउ मच वर्क वी शुड डू इन आवर कंप्यूटर्स, ये बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हायर लेवल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स भी वही हैं, टीचर्स भी वही हैं इस प्लेटफॉर्म में, तो अब थोड़ा सा फोकस आप डालिएगा और सोचिए कि व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ हायर लेवल टीचर्स। आप में से कोई बताएंगे हमारी जो जिम्मेदारियां हैं एक हायर एजुकेशन टीचर्स की तरफ, वो क्या होती हैं? हिंट आपको दे देते हैं कि 5 हमारे ऑब्लिगेशन है जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें करने ही करने एज अ टीचर। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, आप में से बहुत से टीचर्स यहाँ दिख रहे हैं, बताइए हमें कि व्हाट आर द मेन ऑब्लिगेशंस ऑफ अ हायर लेवल टीचर्स। 1-2 करके कुछ भी बताइए। यस एक्सपीरियंस नहीं। चलिए आप में से अगर किसी ने भी एपीआई को पढ़ा हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो वो बताइए, उसको फोकस करते हुए बताइए। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यस। रिसर्च, ये शिखा जी ने बढ़िया बताया। रिसर्च, यस। research experiences also रिसर्च, वेरी गुड। रिसर्च, इनोवेशन, Yes. ये भी सही है, गुड। और yes communicative skills न्यू, communicative skills command on the command and publication the knowledge of the publications new work innovative work हाँ ये सब आपका रिसर्च में आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए इसको Yes. अब हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे communication skills हाँ ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसमें देखिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें, वो क्या है, जब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन टीचर की, हायर एजुकेशन टीचर की 5 ऑब्लिगेशंस होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो उसको करने ही करने हैं, और करने के बाद उसको अपने स्टूडेंट्स के साथ भी डील करना है। तो कौन से करने? सबसे पहले होता है उसका काम होता है टीचिंग, जो जो सब लोग आप लोग भूल गए, किसी ने नहीं बताया। टीचिंग इज द प्रायोरिटी ऑफ अ टीचर, टीचिंग। दूसरा होता है रिसर्च, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। आप टीचर हैं, आपको एग्जाम भी लेना है, आपको इवेल्युएशन भी करना है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी हेल्प होती है वो सब आपको करनी है। फिर फोर्थ होता है आपको गाइडेंस, रिसर्च गाइडेंस ये देना होता है, यानी कंसल्टेंसी, ये सारी चीजें होती हैं। और लास्ट है एक्सटेंशन सर्विसेज, आपको किसी भी फॉर्म में सोसाइटी के लिए वर्क करना होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनसीसी, इन द फॉर्म ऑफ एनएसएस, इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। और ये सारी चीजें आप देखिए, जो बीएड एमएड के टीचर्स हैं वो चाहते हैं चाहे नहीं चाहते हैं, उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। तो जो हमारी यूजीसी ने इन चीजों को बताया, उन्होंने ये 5 चीजों को इंक्लूड किया किसमें? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर में। और उसमें बाकी की हम अभी बात नहीं करेंगे। उसमें जो नया रूल आया है, हो सकता है आप लोगों ने न पढ़ा हो, जो नया एपीआई 2018 में आया है, उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो आप बात कर रहे हैं ना ऑनलाइन टीचिंग की, और उर्वशी मैम ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, उन्होंने कहा कि हम आज के दौर की बात करेंगे कि कोविड-19 के बाद क्या जरूरत। तो यूजीसी ने जब पहले ही आपसे कह दिया है कि आपके
API में, यानी एज अ टीचर आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप गवर्नमेंट सर्विस में आपको दिक्कत आएगी, आपका प्रमोशन नहीं हो, बहुत सारे प्रॉब्लम। तो उसमें उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो जोड़ा वो था क्रिएशन ऑफ ICT मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग पेडागोगी एंड कंटेंट डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव कोर्सेज एंड करिकुला। ये देखिए कितनी चीजें उन्होंने कही हैं। इसको अगर नटशेल में कहें तो उन्होंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन योर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। क्या आप करते हैं ये? अभी जो लोग पहले से ये चीजें करते आए थे, अब आप देखिए हम लोग बात करते हैं गूगल क्लासरूम की। हम लोगों ने एमएड में जैसे अपने बच्चों को कहा कि आपको आप सभी के साथ होता है ऐसा, आप कॉलेजेस में भी लेते हैं, आप मिड सेम एग्जाम करवाते हैं, बीच बीच में आप टेस्ट लेते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बच्चे सब अपनी जगह, बट दे आर हैविंग देयर मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स। तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल क्लासरूम का बढ़िया सा वो प्लेटफॉर्म है आपके लिए, फ्री है, आपने उसी में मिड सेम एग्जाम ले लिया। कैसे लिया ये चीजें सीखने की हैं, लेकिन आपके पास इजी टूल्स हैं। मींस यू आर यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू टेक एग्जामिनेशंस आल्सो, टू कनेक्ट विद योर स्टूडेंट्स आल्सो। तो यूजीसी ने ये चीजें आज नहीं, आज से 2 साल पहले से ही उन्होंने मैंडेटरी कर दी थी कि आपको करना है। आपने तब ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आप ध्यान क्यों देंगे? क्यों? क्योंकि ये आपकी जरूरत है। अब आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं इन चीजों को। तो ICT, इंटीग्रेशन ऑफ ICT, इसके भी उन्होंने 4 पार्ट्स बताए आपको। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव पेडागोगी, यानी आप एक नए तरीके की पेडागोगी विद द हेल्प ऑफ ICT कैसे करें, ये उन्होंने पहली बात कही। दूसरा उन्होंने कहा डिजाइन ऑफ न्यू करिकुला एंड कोर्सेज, आप नए कोर्सेज को, नए सिलेबस को ऐसे डेवलप करें कि अब हमारी जो जरूरत है वो उसको फुलफिल करें, यानी ICT बेस्ड हो। अब आपको पता ही है कि फ्यूचर में जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उसके बावजूद भी आपको 30% कोर्स अपना ICT के थ्रू ही पढ़ना और पढ़ाना पड़ेगा। 30%, हो सकता है ये परसेंटेज कल को बढ़ जाए। तो सेकेंड इज डिजाइन ऑफ न्यू करिकुला एंड कोर्सेज। नेक्स्ट इज, आपने बहुत सुना होगा आजकल मूक, ये भी मैंडेटरी किया है, ये भी कंपलसरी कर रही है यूजीसी की, आप टीचर को सीखना ही सीखना है। मूक मीन्स MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। पहले आप बिल्कुल बॉदर नहीं करते थे कि हम इस तरह के कोर्सेज करें भी, लेकिन अब ये चीजें जो हमारा डिजिटल इनहेबिटेंट्स वाले बच्चे हैं वो कर रहे हैं, वो आज की जनरेशन है वो कर रही है। यानी वो कॉलेज या डिग्री लेवल में आने से पहले ही 3-4 कोर्सेज को कर चुकी होती है, समझ चुकी होती है कि हाउ वी कैन इंटीग्रेट दीज थिंग्स इन आवर सिलेबस। इसके बाद फोर्थ है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ई कंटेंट। एक टीचर को, एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई कंटेंट, हाउ वी कैन यूज दिस ई कंटेंट इन आवर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ये सब चीजें हमको अपनी ऑफलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग, ब्लेंडेड टीचिंग, सब में इस्तेमाल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और अब 2 लाइनों के साथ यहाँ पे हम अब समाप्त करेंगे। अब आपकी जो क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, वो पूछिएगा। लाइनें आपके लिए और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं कि संभल संभल कर रखते हैं कदम इस जहां में, इस जहां यानी ये वर्चुअल वर्ल्ड में, क्योंकि पता है नफस नफस का यहाँ पर हिसाब देना पड़ता है, नफस नफस का यहाँ पर हिसाब देना पड़ता है। थैंक यू सो मच। नफस नफस यानी पल पल का, जो कुछ आप करते हैं इस प्लेटफॉर्म में, एक एक चीज की गिनती होती है। वर्चुअल वर्ल्ड में कोई चीज कभी मिटती नहीं है, सब कुछ इसी में रहती है, सब कुछ आपके सामने होती है, तो आपको वैसे ही करना है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for giving this valuable lecture on the current topic. Now I will request the participants to drop your queries in the chat box if there is any query. Okay.
if you want to ask, you can unmute one by one and ask yourself your query, please, or drop your query in the chat box. I will raise your query. Is there any query? Good morning, ma'am. Uh, Good morning, ma'am. Good morning. yeah. First of all, ma'am, I would like to thank you that you have given us such a motivating lecture. Ma'am, what do you think that the future is of blended teaching or it will be a purely online teaching? We cannot say that it will be purely online teaching. It depends on the present scenario as well as future scenario. What will happen in the future, because in foreign countries now we are having totally online learning. But in India, I don't think so that it will be possible. We should go for, we will go for blended learning. Maybe percentage vary, but we have to go for blended learning. It would not be traditional teaching now in future. और Okay, इसमें ma'am. Thank you so much. एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो कहते भी है ना कि मोमबत्तियों की ऊंचाई भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन रोशनी समान देती हैं। आपका पद नहीं, आपकी योग्यता आपको चमकाती है। अब भविष्य में वही सरवाइव करेगा। आप जानते हैं वो नियम भी कि जो फिटेस्ट रहेगा वही चमकेगा, जो इस टेक्नोलॉजी को अपनाएगा वही इस फील्ड में रह भी पाए। आप देखिए, दोज हु कैन वर्क फ्रॉम होम वो चमक रहे हैं, उनको सैलरी भी मिल रही है, सब काम हो रहा है। और जो नहीं कर पा रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो लॉकडाउन पीरियड को छुट्टियों की तरह मना रहे हैं, उनकी ही छुट्टी भी कर दी जा रही है। इसलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, कहीं भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है इफ यू विल नॉट गो फॉर ऑनलाइन लर्निंग। थैंक यू। Very nice. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Pleasure listening. थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, और बहुत सही बात कही कि फिटनेस विल सर्वाइव द करंट सिनेरियो। डार्विन थ्योरी कभी भी आउट ऑफ द वैल्यू नहीं गई, और आज भी वो पूरी तरह से अपने आप को प्रूव कर रही है। तो मैम आपकी बात बहुत सही है। इसके साथ ही मैम आपका एलिजिबल लेक्चर इस टॉपिक पर दिया, इस टॉपिक को सार्थक बनाया। थैंक यू सो मच मैम। नाउ आई विल रिक्वेस्ट आवर प्रिंसिपल डॉक्टर हेमलता बोरा मैम टू कन्वे द वोट ऑफ थैंक्स। प्लीज मैम जॉइन मैम। Am I audible? Am I audible? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, You okay, are ma'am. audible. Thank you so much, Urvashi ma'am, and thank you so much, Dangwal ma'am. Problem of online teaching and online learning and how to solve them. I think today the world of education and learning is moving towards online teaching. The benefits are undeniable: reduced cost, great flexibility for the student, and the ability to teach 1,000 people all over the globe at the same time. In addition, you can monitor what students are doing at one given moment, and it breaks with the inertia and passivity of the classroom courses. However, e-learning is not without its faults. Online learning comes with its own particular characteristics, which can jeopardize or limit the success of the teaching. E-learning should not be seen as a panacea. It is only by knowing the problems that institutions have encountered that you can implement program to release its full potential. Therefore, in this article, we have identified the some major problem of online teaching learning, but don't worry, we have found a solution for all of them. Problem is online teaching is boring. Solution is find on online courses that is dynamic, fun, interactive. Problem is student encounter technical difficulties. Solution is offer multi-devices courses and personal attention. Problem is the student don't know the course exists. Solution is launch a communication campaign. Problem is student don't have time for online learning. Solution is set a time limit and send reminders. Problem is student need to talk to people. Solution is personal attention, forums and social media. Problem is student can't practice. Solution is use useful and practical courses that have simulators. Problem is the quality of the course is mediocre.
Solution is often nothing but the best, and problem is the online course has no impact on your organization. So solution is align online courses with your organization objective and measure them. Some major problems online teaching and online learning amidst COVID-19, but we are solving this problem. Finally, and at the end of session, honorable and most valued guests, it's my privilege to propose the vote of thanks on behalf of this esteemed institution. We want to express our gratitude to honorable keynote speaker who has spared her precious time for us and graced their occasion with her presence. I extend a sincere thanks to ma'am, constantly motivating and inspiring us, and your vision and commitment to work and its execution. High benchmark you have set for ourselves and never say die attitude help up to excel in all endeavor. We are indeed lucky to get your unconditional love, ma'am, and support. So thank you so much, ma'am. We look forward to same in future also. Behind very successful program lie the manifold attempts of our committed faculty. I would like to take a moment to acknowledge the immense contribution for our dedicated faculty. And finally, in the end, thank you so much, Urvishi ma'am, to organize the successful webinar. And thank you all for making this program a huge success. Thank you so much. Thank you, Dangwal ma'am. Thank you so much.